Second is the chemical industry, that is production of the organic acid. Now there are many microbes which are responsible for the production of organic acid. Okay, actually microbes are very much famous for producing these organic acids, and later these organic acids are used in the various chemical processes, because these are absolutely required for certain kind of chemical processes, and all these organic acids are produced by the microbes. So in the chemical industry, the production of organic acid is also attributed to the microbes, and that is why it is also an application of the microbes in the chemical industry. Now see, the microbes are also used for the commercial and the industrial production of the ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको वेरियस ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद इसको कुछ केमिकल प्रोसेसेस में कुछ रिएक्शंस कैरी आउट करने के भी काम में यूज किया जाता है. लेकिन ये जो सारे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स. ओके, दीज कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लूकोज, that is gluconic acid, or form as the end product from the pyruvate or the ethanol. Okay, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली ग्लूकोज का इस्तेमाल करके भी माइक्रोब्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उनके ग्लाइकोलिसिस का, पायरुवेट और इथेनॉल, तो वहां पे इनका इस्तेमाल करके भी वो क्या तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड तैयार कर सकते हैं. बट देयर आर मेनी माइक्रोब्स which use glucose to directly produce the organic acid. Okay, and sometimes they can use the pyruvate or the ethanol to produce the organic acid. Now let us see some of the examples of the microbes which produces the organic acid. See, the first example is the citric acid. This citric acid is used commercially in the various applications, and it is produced by the Aspergillus niger. Okay, Aspergillus niger is nothing but the फंगाई, एक फंगा है एस्परगिलस नाइजर, और इसी से क्या तैयार होता है, वहां पे साइट्रिक एसिड तैयार होता है. उसके बाद वहां पे ग्लूकोनिक एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एस्परगिलस नाइजर. देन द फ्यूमेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द राइजोपस एरिजस, and the acetic acid is produced by the Acetobacter aceti. Okay, so all these are bacteria and fungi which belongs to the microbes, and these the microbes are responsible for the production of such organic acids such as citric acid, gluconic acid, fumaric acid, and the acetic acid. And for the production of such acids, the various types of microbes used, such as the Aspergillus niger, then Rhizopus oryzus, and Acetobacter aceti. So all these are the microbes used to produce these organic acids. So you can say that the microbes can be used in the chemical industry for the production of the organic acids. Okay, so this is the application of the microbiology in the chemical industry, the second one. Okay, the first one we have covered is the food industry, and second one is the chemical industry. Okay, तो दोनों के एग्जांपल जो है आपको याद रखना है. All right, now consider the next one. There is application of microbiology in the production of vitamins. Okay, so there are certain microbes which are used to directly produce the vitamins. Okay, and then these vitamins can be used as a food supplements. Okay, इनको फिर supplements की तौर पे use किया जाता है in the various sub industries. Okay, तो ये जो होते हैं vitamins, these vitamins are produced by the microbes. Now see, vitamins are some of the organic and nitrogenous compounds which are capable of performing many life sustaining functions inside our body. Right, ये जो vitamins होते हैं ये organic nitrogenous chemical compounds होते हैं, और ये जो vitamins होते हैं हमारी बॉडी में life sustaining functioning करते हैं. ठीक है, अगर कुछ विटामिन की अगर यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में. तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन रखने के लिए बॉडी का, वहां पे देयर इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन फॉर टू आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी के लिए विटामिन का कांस्टेंट सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सम ऑफ दीज विटामिन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स. ओके, नाउ सी दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमंस. ओके, खुद की हमारी बॉडी खुद होकर इनको नहीं बना सकती, वी हैव टू टेक देम एक्सटर्नली. ठीक है, बाहर से उनको लेना पड़ता है, एक्सेप्ट द विटामिन डी ऑफ कोर्स. ओके, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद उसको सिंथेसाइज कर सकती है. ओके, नाउ एंड देयरफॉर दे हैव टू बी द सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट. ठीक है, व्हाटएवर जो हमारा डाइट होगा स्मॉल अमाउंट्स में उसमें विटामिन का होना जरूरी है, तभी जाके हमारी बॉडी जो है वहां पे प्रॉपर्ली फिजियोलॉजिकल उसका फंक्शनिंग चलता रहेगा. सो इन द प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन देयर इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. देयर आर मेनी माइक्रोब्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द विटामिन. These vitamins are the nitrogenous chemical compound which supports our physiological system so that it should work in a proper way. Our body cannot synthesize the vitamins, that is why we have to take it from the diet. Okay, और इसके लिए एक exception है which is called the vitamin D which can be created by the human body. ठीक है, now microbes are capable of synthesizing the vitamins, and hence they can be successfully used for the commercial production of the many vitamins. Okay, see for example thiamine, riboflavin, pyridoxine, folic acid, pantothenic acid, biotin, vitamin B12, ascorbic acid, beta carotene, and the ergosterol. All these vitamins are produced by the microbes. ओके, तो जब ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस किए जाए, माइक्रो से विटामिन प्रोड्यूस किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो समटाइम्स इससे टैबलेट भी बनाए जाते हैं, और ये जो टैबलेट है मार्केट में डायरेक्टली सोल्ड किए जाते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट. ठीक है, जैसे फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स आपने जरूर सुनी होगी, मार्केट में होती है,
है, और ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है विटामिन सप्लीमेंट्स का काम करती है। तो एक प्रकार का विटामिन होता है, और ये जो विटामिन है ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में, इसलिए आज उसका हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज विटामिन आर needed by our body for the proper functioning, and these vitamins are produced by the microbes. Okay, microbes has this capacity to produce all these vitamins. Now see some of the example. Okay, now vitamins are manufactured by the fermentation by using the different microbial sources, such as, see, it is the name of the vitamin, it is a microbial source. See, vitamin B12, for the vitamin B12 is produced by the Neurospora gossypi, then Ermothecium abaci. Okay, and vitamin B12, the another source for the vitamin B12 is the Pseudomonas denitrificans, and the vitamin C is produced by the Aspergillus niger. Okay, so these are three vitamins, that is vitamin B2, then vitamin B12, and the vitamin C. You have the names of the microbes for these vitamins. Okay, so which microbes produce the which vitamin, you should know it. Okay, because यही वो example होंगे जो आपको put forward वहाँ पे करने होंगे. Okay, now consider the next one, that is the production of medicines. Now see, in the medicinal industry, microbes has plays a very vital role, because many medicines, many chemical compounds which act as a which has the medicinal properties are coming from the microbes. Okay, so microbes in the medicinal industry has the very large and wider applications. See, antibiotics are probably the most important group of the compounds synthesized by the industrial microorganisms. एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं, ये एंटीबायोटिक जो है ये इंडस्ट्रियल माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ही क्रिएट होते हैं. सो इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दीज एंटीबायोटिक विच आर यूज बाय द ह्यूमंस. ओके, नाउ सी, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एज यू नो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है आपका टॉपिक है एक यूपीएससी में इसके सिलेबस में. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स और द प्लांट्स which are useful for the which has the very special kind of function in that particular cell whenever it is produced. Okay, it is always produced in a trace amount, and it do not produce from in day-to-day life of the plants or microbes, but these are only produced when there is a certain kind of stresses. Now these are secondary metabolites. Humans have learned how to use these secondary metabolites for our own purposes. Okay, so we use them as a antibiotic, right? Now see, they have the therapeutic importance and are used in the medical treatment. These are produced in a small amounts by certain microbes like bacteria, fungi, and few algae, which inhibit the growth of the microbial pathogens. Okay, so these are secondary metabolites are produced by the bacteria, fungi, and algae, which inhibit the growth of the microbial pathogens, which are responsible for causing the various diseases. Okay, therefore they are used in the medicine. These antibiotics may be antibacterial or the antifungal in nature. The antibacterial भी हो सकते हैं, antifungal भी हो सकते हैं, and all these are coming from the bacteria, algae, fungi, etc. Okay, now see some of the common antibiotics and their microbial source is given here. See, it's a chloromycetin, erythromycetin, then penicillin, streptomycin, grassofuvin, grassofuvin, then bacitracin, then oxytetracycline or the tetramycin, and their microbial source, that is Streptomyces venezuelae, then Streptomyces erythraeus, Penicillium crassigenum, then Streptomyces gracius, Penicillium gracifolium, and Bacillus licheniformis, then Streptomyces aurificans. ये जो सारे माइक्रोब्स के सोर्स दिए गए हैं, ये माइक्रोब्स के सोर्स से ये सारे एंटीबायोटिक्स निकलते हैं. ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि ये नाम ही पढ़ के कि जो हम मेडिकल जो शॉप होती है इनमें कितने कॉमन होते हैं. जैसे इरिथ्रोमाइसिन जो है ये कॉमन थ्रोट इन्फेक्शन में यूज होता है. ओके, पेनिसिलिन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, राइट. स्ट्रेप्टोमाइसिन भी थ्रोटमाइसिन थ्रोट इन्फेक्शन के इसमें यूज होता है. सो यहाँ पे जितने भी एंटीबायोटिक दिए गए हैं वेरियस उसके एप्लीकेशंस है, एंड ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम दी माइक्रोबियल सोर्सेस. ओके, टिपिकल माइक्रोबियल सोर्सेस आर गिवन हियर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा इसमें ये चार्ट ही होगा. ठीक है, कि एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका माइक्रोबियल सोर्स क्या है. The statins. Okay, अब ये जो statins है ये भी एक केमिकल कंपाउंड है which is produced by the Monascus purpureus. ठीक है, ये Monascus purpureus फंगाई जो है ये उसको प्रोड्यूस करता है. अब ये जो statins है इनका फंक्शन क्या है? Have been produced on the commercial scale. कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस होता है. It is the blood cholesterol lowering agent. See what important function it does. It lowers the blood cholesterol level. So statins which are produced by the Monascus purpureus which is a fungi which is a microbe. ये माइक्रोब प्रोड्यूस करता है स्टैटिन को, और ये जो स्टैटिन होता है ये कमर्शियल स्केल प्रोड्यूस किया जाता है, उसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे यूज करता है. दिस एजेंट एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. देखिए कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसके लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पांसिबल होते हैं. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, इन एंजाइम्स के साथ जो है ये स्टैटिन क्या करता है, इंटरफेयर करता है, उनके साथ ये कॉम्पिटिटिव उनका इनहिबिटर बन जाता है. तो ये एंजाइम जैसे ही इनहिबिट हो जाते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आने लगता है. आप जानते हो जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है.
जैसे फैटीनेस आता है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक के भी चांसेस होते हैं। सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे स्टैटिन्स को यूज किया जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टैटिन्स होते हैं ये मोनास्कस परविरियस से आता है, विच इज नथिंग बट द फंगाई। ठीक है, वो एक माइक्रोब है और इस माइक्रोब से ही ये स्टैटिन्स आते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। और ये कैसे काम करते हैं बॉडी में, ये जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं और इनको इनहिबिट करने के बाद जो है कोलेस्ट्रॉल कम क्वांटिटी में बॉडी में बनता है, इस वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द माइक्रोबियल प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टैटिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोनास्कस परविरियस, ओके, व्हिच इज द फंगाई। नाउ सी नेक्स्ट इज द इंसुलिन प्रोडक्शन। देखिए इंसुलिन प्रोडक्शन जो है, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट के साथ इसको समझना पड़ेगा कि इंसुलिन कौन सा माइक्रो प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, देखिए अब जो इंसुलिन होता है, ये जो इंसुलिन है, ये इसका जो प्रोडक्शन होता है ये कोई टिपिकल माइक्रोब्स नेचुरली नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी की जो मेथड्स है उनको अप्लाई किया जाता है और उसके बाद इंसुलिन प्रोडक्शन लिया जाता है। तो चलिए इसको ठीक तरह से समझते हैं। देखिए, फॉर डेकेड्स द डॉक्टर्स हैड ट्रीटेड द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज मिलेटस विद द इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड काउज एंड पिग्स। ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिकल इंसुलिन आने से पहले, उससे पहले जो डॉक्टर्स है वो जो उनके पास जो पेशेंट आते थे डायबिटीज मिलेटस के, तो वो उन पेशेंट को जो आर्टिफिशियल इंसुलिन देते थे, ये आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो आता था स्लॉटर्ड काउज और पिग्स से। ठीक है, उनसे पैनक्रियाज निकाली जाती थी स्लॉटर्ड काउज की और पिग्स की, और उनसे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उनसे उस इंसुलिन से डायबिटीज मिलेटस को वहां पे ट्रीट किया जाता था। नाउ ये था ट्रेडिशनल मेथड पहले, लेकिन उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कुछ क्रिएट किए गए। ठीक है, कोई उन्होंने बैक्टीरिया लिए, फॉर एग्जांपल ई कोलाई लाइक बैक्टीरिया, ई कोलाई लाइक बैक्टीरिया को क्या किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया और उसके अंदर जीन इंसर्ट किया गया विच प्रोड्यूसेस द इंसुलिन, जो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो ये जीन जब इसमें सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कर दिया गया जब बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स, तो ये ई कोलाई इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा। और आप जानते हो ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरियम है, तो ये रैपिडली डिवाइड होता है, इसका नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। जितना इसका नंबर बढ़ता रहता है उतना ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है। तो ये सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में जो इंसुलिन यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आजकल ये इंसुलिन जो है मार्केट में अवेलेबल है। Okay, now genetically engineered bacteria produces the hormone insulin in a pure form that is less likely to cause the allergic reactions in the patient. ठीक है, देखिए जब काउ से और पिग से निकाला जाता था ये इंसुलिन, तो ये एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाता था पेशेंट में। क्यों दिखाता था? बिकॉज दिस प्रोटीन दैट इज द हार्मोन विच इज कॉल्ड इंसुलिन, दिस कमिंग फ्रॉम द अदर एनिमल सोर्स, क्योंकि उसका कोई सोर्स जो था वो एनिमल सोर्स था, किसी और एनिमल से वो आ रहा था। वो ह्यूमन का जो जीनोम है जो नेचुरली हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उस जीन से वो नहीं आ रहा था। इसलिए हमारी बॉडी क्या सोचती है कि ये जो इंसुलिन आया है ये फॉरेन प्रोडक्ट है, ये कहीं बाहर से आया है, इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होती थी। ठीक है, लेकिन जब से हमने इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन जो है वो ई कोलाई में इंसर्ट किया है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्यूरिफाइड इंसुलिन बनाता है और ये प्योर फॉर्म में यूज होने वाला जो इंसुलिन है ये कोई एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज नहीं करता है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होने की वजह से हम लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन क्रिएट कर पा रहे हैं और मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनको एट द वेरी लो कॉस्ट जो है यहाँ पे इंसुलिन आप अवेलेबल हो गया है और जो इथिकली भी बहुत राइट लगता है। ठीक है, इससे पहले जो काउ से और पिग से आने वाला जो इंसुलिन था वो इथिकली इतना राइट नहीं लगता था। तो इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी जो है माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ सी द मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर प्लेस इन द लार्ज स्टेनलेस स्टील फर्मेंटर टैंक्स। ठीक है, स्टेनलेस फर्मेंटर टैंक्स होते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन की, उसमें उनको इन मॉडिफाइड बैक्टीरिया को प्लेस किया जाता है वेयर द जीन कॉजेज देम टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो लार्ज स्टेनलेस स्टील के वहां पे फर्मेंटेशन के टैंक्स होते हैं। ये जो फर्मेंटेशन के टैंक्स होते हैं इनमें इस मॉडिफाइड बैक्टीरिया को रखा जाता है और इन मॉडिफाइड बैक्टीरिया को जैसे ही वहां पे रखा जाता है तो वहां पे वो लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इस इंसुलिन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आज की डेट में हमारे पास लार्जर क्वांटिटी में इंसुलिन है थैंक्स टू द बैक्टीरियाज। ओके, बैक्टीरिया की वजह से वहां पे इंसुलिन लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी in the enzyme industry. Okay, these enzymes are the proteins. Okay, enzymes जो होते हैं सारे proteins होते हैं and these enzymes has a special kind of activity. उनके पास एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिस वजह से they can increase the rate of chemical reaction. Now in living beings the enzyme play an key role in the metabolic reactions and therefore these are essential for the survival of such a being. Okay, now at the cellular level जब आप कंसीडर करते हो, अगर आप कोई सेल कंसीडर करोगे, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है they cannot be performed without the enzymes. Okay, every time enzyme is needed to carry out the particular chemical reaction in a very smooth way. ओके, तो एंजाइम का इंपॉर्टेंस किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए, विदाउट द एंजाइम वी कैन नॉट इमेजिन द लिविंग सेल। ठीक है, एंजाइम
एंजाइम के बगैर वहां पे लिविंग सेल हम इमेजिन नहीं कर सकते। सारी क्रिटिकल जो फंक्शनिंग होती है सेल की, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ऑल दिस केमिकल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग द एंजाइम्स। ओके, सो एंजाइम प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, एंड दैट इज व्हाई we cannot survive without these enzymes, right? Now enzymes are proteins and known as the biocatalyst because in the biological system they act as a catalyst, and this catalyst increase the rate of chemical reaction. Okay, although they do not take part in the reaction, but they increase the rate of reaction, and that is why they are called as the biocatalyst due to their ability to promote the reaction more quickly at the body temperature and more efficiently. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पे वो रिएक्शन को बड़ी क्विकली प्रमोट कर देते हैं, बड़ी क्विकली वो रिएक्शन को कैरी आउट कर देते हैं। वही अगर फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम सेम रिएक्शन अगर लेबोरेटरी में करने की कोशिश करें तो उसको बहुत सा वक्त लग जाता है, लेकिन लिविंग सिस्टम में ये जो केमिकल रिएक्शन होती है बाय यूजिंग द बायोकैटालिस्ट बड़ी क्विकली वो कैरी आउट कर देते हैं। तो एंजाइम का जो इंपॉर्टेंस है किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए वो अनडिनाइबल है। ठीक है, now there are many microbes that synthesize and excrete the large quantity of enzyme into the surrounding medium. Okay, so there are some microbes, कुछ microbes ऐसे होते हैं जो अपने सराउंडिंग में large quantity enzymes को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, using this feature of these tiny organisms many enzymes are produced commercially। ठीक है, देखिए टाइनी ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हम माइक्रोब्स की बात कर रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं कमर्शियली। सी दीज एंजाइम्स आर द अमाइलेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड द मेनी अदर्स। ऑल these enzymes are produced by the particular kind of microbes, and these enzymes has a varied applications in the living, not only in the living system but also outside the living system as well। उनको कमर्शियली भी इकोनॉमी में यूज किया जा सकता है इन सारे एंजाइम्स को। सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम उसके। देखिए, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री the enzymes are able to improve the quality of फैब्रिक्स की जो क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करने के लिए इन एंजाइम्स काम में आते हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन द पल्प एंड द पेपर इंडस्ट्री, अगर पल्प और पेपर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, दे आर इन्वॉल्व इन द बायोमैकेनिकल पल्पिंग एंड द ब्लीचिंग। ठीक है, उसमें जो पल्पिंग की जाती है और जो ब्लीचिंग की जाती है पेपर बनाते वक्त और पल्प क्रिएशन के वक्त, दीज आर ऑल्सो यूज द एंजाइम्स विच आर नेचुरली प्रोड्यूस बाय दीज माइक्रोब्स। ठीक है, इन माइक्रोब्स से आने वाले एंजाइम्स का इसमें इस्तेमाल होता है, जैसे पल्पिंग और ब्लीचिंग में, पेपर इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फैब्रिक्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी इन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि एंजाइम जैसे जैसे जहां उनका एप्लीकेशन है वहां अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री वो उनको यूज करते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पल्प पेपर इंडस्ट्री हो गया, वो अपने हिसाब से एंजाइम्स को यूज करते हैं। नाउ सी दे पार्टिसिपेट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। अगर कोई सब्सटेंस अगर एक्सट्रैक्ट करना है हमें और उसे सेपरेट करना है, तो वहां पे भी एंजाइम्स काम में आते हैं, सच एज कैरोटीनॉइड्स एंड द ऑलिव ऑयल। अगर कैरोटीनॉइड्स और ऑलिव ऑयल को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पे भी एंजाइम्स हमें यूज करने पड़ते हैं। सी द लाइपेज जो है उसमें से एंजाइम इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्री। देखिए, लाइपेज जो होता है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कपड़े धोने के लिए जो भी पाउडर वहां पे होते हैं, व्हाटएवर द पाउडर इज क्रिएटेड फॉर इन द एंड यूज्ड एज ए डिटर्जेंट, इन दैट डिटर्जेंट वी हैव द लाइपेजेस एंजाइम टू इंप्रूव द क्वालिटी। ओके, नाउ सी बिकॉज दे हैव द सुपीरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, ओके, इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस एंड रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स, व्हाटएवर द ऑयल स्टेन्स आर देयर, these oil stains are efficiently removed by this lipase enzyme, and it also increases the brightness of the cloths. That is why these lipases is typically used in the detergent industry. So please note it down. This is the first enzyme you can give as an example how this enzyme are used in the various industry. The lipase is used in the detergent industry because they has the superior cleaning properties, such as they increase the brightness of the cloths. They also remove the oil stains. They also use in the cosmetics. ठीक है, कॉस्मेटिक में भी यूज होते हैं, एनिमल फीड में भी यूज होते हैं, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी वो यूज होते हैं। ठीक है, तो लाइपेजेस को आपको टिपिकली याद रखना है, जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसके पास सुपीरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज है, एंड दे इंक्रीज द ब्राइटनेस एंड आल्सो रिमूव द ऑयल स्टेन्स। ओके, नाउ सी following are also the few examples of the enzyme used in the industrial food processing। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में जो है एंजाइम्स को यूज होते हैं वो है इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज आ रहा है सैकरोमाइसिड सेरेविजी से, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट। ओके, देन पेक्टिनेज, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्क्लेरोशियनिया लिबर्टाइन, देन एस्परगिलस निगर इज आल्सो द source of the pectinase. Then the lipase is coming from the Candida lipolytica, and the cellulase is coming from the Trichoderma conici. So all these enzymes has a varied applications in the various food industry, whether it's a textile industry, whether it's a paper industry, whether it's a food industry. In various industries, these enzymes are used, and these enzymes are typically produced by these microorganisms. Okay, in microorganisms, ये microorganisms उसे typically produce करते हैं, and that is why हम कहते हैं कि माइक्रोब जो है वो एंजाइम्स का भी सोर्स होते हैं, विच एंजाइम्स आर टिपिकली यूज्ड इन द मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इन दैट कैटेगरी हम एंजाइम की बात कर रहे थे, और एंजाइम में एक सबसे बढ़िया मेंशन जो है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इट्स एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रोब व्हिच इज कॉल्ड एज द थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस ये जो माइक्रोब है, इस माइक्रोब से, इस बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसलिए उसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं। जो टी होता है इट स्टैंड्स फॉर द थर्मस एंड एक्यू स्टैंड्स फॉर द एक्वेटिकस। ओके, ये जो थर्मस एक्वेटिकस होता है ये डीप थर्मल वेंस में हमें मिलता है। ठीक है,
ये थर्मल वेंस में होता है जहां पे टेम्परेचर नियरली 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर होता है उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस थर्मस एक्वेटिकस वी फाउंड द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड द टैक पॉलीमरेज। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टैक पॉलीमरेज? सी, a specific type of the bacterial species है एक Thermus aquaticus, the DNA polymerase that is thermostable, it can withstand the very high temperatures. Why it can withstand the very high temperature, this Taq polymerase? Because this Taq polymerase is extracted from the Thermus aquaticus which itself lives on the 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे खुद बैक्टीरिया रह रहा है, उसके पास जो एंजाइम है वो भी हाई टेम्परेचर में जो है ऑपरेट कर सकता है। जनरली जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 10 डिग्री अगर प्लस माइनस हो जाए तो ये एंजाइम जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन टैक पॉलीमरेज जैसे एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर जो है टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ इट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर। आप जानते हो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 96 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें लगता है, राइट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जब हम वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीसीआर क्या होता है। उसमें एक स्टेप होती है जिसमें 96 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। अब ऐसे टेम्परेचर पे कोई एंजाइम सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे टेम्परेचर पे टैक पॉलीमरेज जो है वो सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैक पॉलीमरेज एंजाइम वी कैन परफॉर्म द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आप जानते हो कि ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इट्स द प्रोसेस यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट इन अ सिंगल स्टेप। हम डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसका नंबर बना सकते हैं। जिस तरह से हम जेरॉक्स कॉपीज निकालते हैं पेपर की, उस तरह से हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आजकल जो पीसीआर है इट इज यूज्ड इन द लार्जली यूज्ड इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एज वेल। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम है व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस व्हिच इज नथिंग बट द बैक्टीरियम व्हिच इज नथिंग बट द माइक्रोब, एंड दिस एंजाइम इज लार्जली यूज्ड इन द polymerase chain reaction which has a wider applications. Okay, तो एंजाइम के तौर पे ये भी आपको याद रखना है। ओके, सी द अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड द स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, दिस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज आ रहा है एंड इट हैज अ फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट? फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है व्हिच इज यूज्ड इन द क्लॉट ब्लस्टर। ओके, अगर हमारे बॉडी में अगर ब्लड में कोई क्लॉट क्रिएट हो जाए और इस क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाए तो ब्लड फ्लो से क्लॉट को निकालना पड़ता है। ओके, तो ताकि वहां पे स्मूथली ब्लड फ्लो हो सके। सो दिस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड एज ए क्लॉट ब्लस्टर। ओके, ये फाइब्रोनोलिटिक इफेक्ट दिखाता है। फाइब्रोनोलिटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वो क्लॉट ब्लस्टर के तौर पे काम करता है फॉर क्लियरिंग द ब्लड क्लॉट्स। जो ब्लड क्लॉट्स वहां पे क्लियर किए जाते हैं इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट व्हिच मे कॉज द हार्ट अटैक। अगर ब्लड अच्छी तरीके से पंप नहीं होगा तो वहां पे हार्ट अटैक जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो क्लॉट ब्लस्टर के तौर पे हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को यूज करते हैं। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का सोर्स क्या है? दिस सोर्स फॉर दिस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज द स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। दिस इज द बैक्टीरियम। ओके, अगेन माइक्रोब से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आ रहा है जो रिस्पांसिबल होता है फॉर द clot blustering, okay, for the fibrinolytic effect. So all these are the enzymes which are coming from the microbes, okay, which has the larger applications in the other industries as well. Okay, so this is all about the application of the microbiology in the industries. Okay.